photoelectric current versus frequency. Photoelectric current depends only on number of falling photon, that is intensity of falling photon. It is independent of its frequency. हम यहाँ से यहाँ तक photoelectric current को increase करें without changing frequency. From year to year, we can increase the frequency without changing photoelectric current. So they are independent of each other. ये show कर रहा है ग्राफ. Clear है उतना? So photoelectric current is independent of frequency. K max लेते हैं तो फिर वो ग्राफ straight line आता है. They are dependent on each other. जैसे लास्ट में हमने phi 1, phi 2, phi 3 को कंपेयर किया था फॉर 3 डिफरेंट सरफेस. क्लियर? यहाँ पे 3 डिफरेंट इंटेंसिटी को हम फॉल कर रहे हैं ऑन सेम मेटल सरफेस. Intensity 1, intensity 2, intensity 3. Which one is more? कौन सा इंटेंसिटी ज्यादा है, कौन सा कम? हाँ यश, क्यों है ऐसा? रीजन तुमने सही आंसर रिपोर्ट किया है. व्हाई? सर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर photoelectric current of I1 is greater than photoelectric current of I2 is greater than that of I3 and सर photoelectric current directly proportional होता है यस, इंटेंसिटी. करेक्ट है. Photoelectric current, if you draw horizontal line, the photoelectric current is maximum for I1 and minimum for I3. So greater the photoelectric current, greater will be intensity. So I1 greater than I2 greater than I3 as PEC1 greater than PEC2 greater than PEC3. 1, 2, 3 photoelectric current. क्या क्लियर है सभी को उतना? सर प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए ना. नहीं आवाज आई, किसी ने कुछ बोला है तो? सर यस सर प्लीज इंटेंसिटी का एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. आवाज ही नहीं आती है तो क्या बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता. थोड़ा सा तो माइक पास में रखा कर या चैट बॉक्स में टाइप कर दिया. हेलो सर. हाँ अब आ रही है. सर प्लीज एक बार इंटेंसिटी का एक बार प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना. Greater the photoelectric current, greater will be intensity. For I1 photoelectric current 1, for I2 photoelectric current 2, for I3 photoelectric current 3. So this current is minimum, this current is maximum. जितने ज्यादा photons fall होंगे surface पे उतना ज्यादा electron eject होगा. Greater the ejection of electron, greater will be photoelectric current. So greater photoelectric current, greater the ejection of electron, greater will be intensity. Intensity and photoelectric current are proportional to each other. Yes, thank you.
कॉपी कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ फिर। See, any charged particle Q will gain or lose energy which is equal to Q into V in a potential difference V. हमें ये तो पता है कि कोई चार्ज पार्टिकल Q को हमने किसी पोटेंशियल डिफरेंस V में रखा, it will experience certain force, it will start moving. Clear? यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा. बट अब द नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट amount of energy it will gain or it will lose. अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है, सर लूज कैसे होगा, ये तो गेन ही करेगा ना. देखो दो पॉसिबिलिटी आ सकती है. ये पॉजिटिव चार्ज है, पहला ये रेस्ट पर है, क्लियर, रेस्ट पे इट विल गेन एनर्जी. नाउ इनिशियली दिस पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ये पहले से ही पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है. अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वी पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये इसे रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो जो उसका काइनेटिक एनर्जी इस डायरेक्शन में था उसको डिक्रीज कर देगा. तो डिक्रीज या लॉस तब होगा when there is a initial movement of the charge and the potential difference is opposing its movement. उसके मूवमेंट को यदि पोटेंशियल डिफरेंस अपोज कर रहे हैं तो उसका एनर्जी लूज हो जाएगा, और जिसके जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा है उसके मूवमेंट को अपोज नहीं कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है या मूव नहीं कर रहा है, तो उसको एनर्जी प्लस साइन के साथ गेन हो जाएगा. इधर मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करेगा, लूज हो जाएगा, इसलिए गेन और लॉस वर्ड यूज किया गया है. Yeah. So charge Q, potential difference V, greater the potential difference, greater the charge, greater will be energy gain or loss. If charge is electron, then Q equal to V, और हम Q को E लिख देंगे E into V. V को लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस में, वोल्ट में. E को हम E में भी रख सकते हैं, और E का एग्जैक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, 1.6 10 to the power minus 19 कूलम. तो आंसर इस साइड में आएगा. उस केस में पता है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, जो ऑलरेडी मैंने पहले भी यूज किया है, that is derived from here. When one electron is accelerated in potential difference of 1 volt, then its energy will be 1 electron volt. यहाँ पे चार्ज रखा एक इलेक्ट्रॉन का, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा. Q will be E, V will be 1 volt, so we read it as 1 electron volt. ऐसा हम इसे पढ़ेंगे. अब इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कैसे करें? हमने इसको तो SI में रखा है, E को भी SI में रख दो. 1.6 10 to the power minus 19, तो वो आंसर आ जाएगा SI यूनिट जूल्स में एनर्जी का, ये जूल में आ गया. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू दिस मेनी जूल्स. इसका कन्वर्जन हो गया, इसका डेफिनेशन भी हो गया. जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट में एक्सेलरेट करेंगे, एनर्जी विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब मुझे ये बताओ, अर्चित, आर्य, आशीष, तीनों में से कोई ये बताओ, यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट से एक्सेलरेट करूं तो कितना एनर्जी होगा? How much energy it will gain? Archit, Arya, any one of you? Sir, 10 electron volts. 10 electron volt, simple सा है. 1 volt से 1 electron volt, x volt से x electron volt. So any electron accelerated in x volt, its energy will be x electron volt. So electron के लिए potential difference का वैल्यू और एनर्जी गेन या लॉस का वैल्यू सेम होता है मैग्नीट्यूड वाइज, सिर्फ यूनिट अलग है, वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर?
तुम्हें याद है मैंने काइनेटिक एनर्जी को लिखा था वो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है अभी डिफाइन करना बाकी है, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस था वी स्टॉप। सो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, इसलिए उसे मैंने वहां पे ऐसा लिख दिया था। राइट, मैं भी इसे डिफाइन करना बाकी, उसी के लिए मैं सब कुछ बता दूंगा। इसके नीचे लिखो एक लाइन और, when any electron is accelerated through x volt, its kinetic energy will be x electron volt. When any electron is accelerated through x volt, its kinetic energy will be x electron volt. अच्छा, वन मोर थिंग अगेन, मैं फिर से बोल रहा हूँ एटलीस्ट तुम लोगों से, क्योंकि अब काफी कुछ टाइम हो गया है तुम्हें रेजोनेंस में, तुम इवन काफी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे 10th में भी रेजोनेंस में थे, हमने अर्ली स्टार्ट किया है, क्लियर, तो काफी टच में हो तुम अब हमसे भी। तो तुमसे एक्सपेक्टेड है कहीं भी तुम्हें कुछ थोड़ा भी लगता है कि सर ये क्यों लिखा है, तो तुम डाउट पूछो। मैं भी दो चीजें ऐसी मेरे सामने आई है जो मैं एक्सपेक्ट करता कि तुमने डाउट पूछोगे, बट तुमने नहीं पूछा है। दोनों का बताता हूँ। एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने लिखा था, कुछ भी मैंने वर्ड ही नहीं उसे एक्सप्लेन किया, सिर्फ लिख दिया था उस ग्राफ में। तुमने अपने लेक्चर नोट्स में लिखा होगा, बट मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर ये क्या है। एक और चीज मैं बताता हूँ, एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का हो गया, और एक और क्या था, अपोजिंग पोटेंशियल। एक और कुछ अभी मैंने लिखा था जिसे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम कुछ पूछोगे, मैं खुद भी भूल गया कि क्या था वो। बट कहीं भी अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुम थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो, तुम्हें लगता है कि ये पॉइंट क्यों लिखा है, बिल्कुल पूछो, जैसा हम नॉर्मली क्लास में पूछते हैं। तुम चैट बॉक्स में लिख दो, तुम अनम्यूट कर दो, मतलब कोई भी टीचर ये नहीं सोचेगा कि क्यों पूछ। बट यदि कोई ऐसा टर्म लिखा है जो तुम्हें नहीं पता है तो पूछो उसी टाइम। जो सेकंड में बोल रहा था ना, वो ये बोल रहा था एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स। ये जहां तक मुझे ध्यान है, आई हैव नॉट एक्सप्लेन के मैक्स मैक्सिमम क्यों लिखा है।
और किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं है। ये एक्सप्लेन किया गया था क्या के मैक्स क्यों लिखा है, के क्यों नहीं लिख दिया नॉर्मल? No, sir. No, sir. एक्सप्लेन करेगा व्हाई के मैक्स इज रिटन हियर, व्हाई नॉट के ओनली? अभिषेक, अभिषेक आर्य, क्यों के लिखा है यहाँ पर, के मैक्स लिखा है, व्हाई के इज नॉट रिटन, ओनली के इज नॉट रिटन हियर? क्या मीनिंग है इस के मैक्स का, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी का? सर हाँ सर क्योंकि जो हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वो होगी सर, वो हायर होगी जब वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। देखो क्यों लिखा है के मैक्स, ये जनरली मैं हमेशा जब लिखता हूँ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आगे लेके नहीं करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बताना होता है, मतलब जस्ट ये लिखते हैं तो काफी बार बच्चे पूछते हैं सर के मैक्स क्यों लिखा है, और तुमने नहीं पूछा इसलिए मैंने उस टाइम बताया भी नहीं, और मैं मतलब फिर अभी मुझे याद आया कि ये सही रिलेटेड है तो तुमने पूछा भी नहीं था। सी whenever we pass transfer certain photons, certain radiation on a metal surface, electron get ejected from the surface, ऐसा कुछ हमने देखा। इसका बाहर जाने में जो एनर्जी यूज हुआ वो है h0, बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ। One more possibility will be there if that photon is striking to the atom which is present, which is not present on the surface. Let's say वो कुछ यहाँ पे third layer, fourth layer में present है। That photon is striking to this electron, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होता है, इस एटम से स्ट्राइक होता है, इससे स्ट्राइक होता है और फिर बाहर आता है। हमने एनर्जी सप्लाई किया 10 यूनिट, ये है लेट्स से 3 यूनिट, ये होना चाहिए था 7 यूनिट। क्या हम ये बोल सकते हैं if electron is emerging from the inner layers, it will collide to other atoms and during collision it will lose certain amount of energy। तो जितना एनर्जी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका जब वो बाहर आएगा, क्या अब 7 यूनिट एनर्जी बचेगा क्या? समझ में आ रहा है क्यों इसको के मैक्स लिखा है? दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। नाउ दिस इनर इलेक्ट्रॉन कैन लूज सर्टेन एनर्जी ड्यूरिंग दिस कोलिजन, वो एनर्जी लूज करेंगे और एनर्जी लूज होने के कारण ये मैक्सिमम पॉसिबल इतना या इससे कम रहेगा। अब हम आते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस पर। सर हाँ सुनो, सर मतलब जो के मैक्स होगा वो जितनी उसने हायर एनर्जी लूज की वही होगी ना? रुक जाओ मैं पूरा बोलने दो मुझे। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं यहाँ पर। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजेक्टिंग बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन्स तो फोटोन के कारण इजेक्ट हो रहे हैं, वो चाहे पॉजिटिव टर्मिनल पे फॉल हो चाहे नेगेटिव टर्मिनल पे फॉल। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी इजेक्ट होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे। क्लियर? We have let's say 3 types of electron, एक का एनर्जी 7 यूनिट उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, एक का 5 यूनिट, एक का 3 यूनिट। अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे, इनका एनर्जी डिक्रीज होगा। क्या लगता है सबसे पहले जीरो एनर्जी किसका हो जाएगा? 3 वाले का, 5 वाले का, 7 का? 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 3 यूनिट एनर्जी, 5 यूनिट एनर्जी, 7 यूनिट एनर्जी। सो हम स्लोली पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। व्हिच वन विल गेट जीरो एनर्जी इनिशियली? अपोजिंग पोटेंशियल है, अपोज कर रहा है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, तो सबसे पहले इसका एनर्जी जीरो होगा या सबसे ज्यादा वाले का जीरो? इसका जीरो होगा, यूनिट 3 वाले का। तो ये सबसे पहले जीरो होगा। हमें इस सर्किट में सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जा रहे थे, इफ यू वांट टू स्टॉप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, हम बोल सकते हैं इसको जीरो कर दिया तो ये तो अपने आप जीरो हो ही जाएंगे पहले वाले। सो इट इज द अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव बनाया, अपोज कर रहे हैं मूवमेंट के इलेक्ट्रॉन को। पोटेंशियल डिफरेंस इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट that can just stop the fastest moving electron from one electrode to other, which makes current in the circuit zero, जिसके कारण यदि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एकदम ब्लॉक हो गया सारे इलेक्ट्रॉन्स का,
so electric current will not be there in the circuit, zero हमें मिलने लगे. Here that potential difference is called stopping potential difference. क्या हमें इतना समझ में आता है अभी stopping potential difference? Yes, sir. Yes, sir. तो ये अपोजिंग है. अब हमने नेगेटिव टर्मिनल इसको बना दिया. फोटो इलेक्ट्रिक में सब कोई कंपल्सन नहीं कि ये नेगेटिव होगा वो नेगेटिव होगा. ये तो जस्ट इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन और अपोज करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, अपोज करने के लिए. तो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ फोटोन, नॉट बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस. हम पोटेंशियल डिफरेंस को स्लोली बढ़ाते जा रहे हैं. जैसे ही करंट सर्किट में जीरो मिल गया मतलब इसका भी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, और वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल. So can we say that when K max is opposed by the potential difference, Q into V stopping, वो हम stopping potential बोल देंगे. So Q का वैल्यू E, K max, EV stop. अब ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट कुछ भी आएगा. E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो E को एज इट इज छोड़ देंगे, इसका वैल्यू रख देंगे. If you want to find out in SI unit तो E को भी रख दो 1.6 10 to the power minus 19 तो जूल्स में आता है. और यदि हम Ke max को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं, so potential difference in volt and Ke max in electron volt both are same. कॉपी करो. किसी को कुछ डाउट है इसमें तो क्लियर करो. समीक्षा क्लियर है इतना? Yes, sir. यश, तनिषा, ईशा, is that okay? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉन हूं एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. नेगेटिव टर्मिनल ने मुझे कुछ अपोज किया मेरे मूवमेंट को. हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते गए ताकि मेरा मूवमेंट का 100% अपोज हो जाए, मैं स्टॉप हो जाऊं, मैं उस इलेक्ट्रोड तक पहुंच ही ना पाऊं, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में जीरो हो जाए. तो वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, which do not allow any electron to move from here to here. वो सारे इलेक्ट्रॉन को इतना अपोज कर दे कि इलेक्ट्रॉन बीच में ही रुक जाए, अपोजिट डायरेक्शन मूव करे, बट सर्किट तो कंप्लीट नहीं होगा. उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे. Sir. Sir, यस sir यस अगर लिसनिंग. सर इस डायग्राम में हमने अगर जो पोल्स है प्लस माइनस उन इलेक्ट्रोड्स उनको एक्सचेंज कर दिया तो सर करंट बढ़ेगा या उतना ही रहेगा सर? अच्छा अब मुझे बताओ दो चीजें यहाँ पर. करंट मींस चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम. क्लियर? कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है. यदि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को इन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर इसे नेगेटिव से पॉजिटिव बना दिया और इन फोटॉन्स की इंटेंसिटी को अभी भी उतना रखा, उसे डिस्टर्ब नहीं किया, क्या लगता है चार्ज जो इजेक्ट होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे क्या उससे? सर सेम रहेगा. तो यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ माइनर सा ऑब्जर्वेशन लिया जा सकता है. वो माइनर ऑब्जर्वेशन क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन व्हिच आर रिजेक्टिंग फ्रॉम हियर एंड दे आर नॉट एबल टू रीच अप टू दिस इलेक्ट्रोड. बहुत कम इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, उन्हें वो डायरेक्शन दे देगा. वो चाहे 2 वोल्ट हो, चाहे 15 वोल्ट हो, चाहे कितना भी हो, उसको बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा. बट हाँ जीरो से हम कुछ लेकर आएंगे तो शायद थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेटर आएगा. आया समझ में? यस सर. Sir. कुछ मैसेज है कौशल का भी. सर वी स्टॉप इज देन बेस्ड ऑन लॉस ऑफ एनर्जी. यस वी स्टॉप बेसिकली इतना एनर्जी लॉस हो रहा है. वो लॉस और गेन मुझे इसलिए लिखना पड़ा था क्योंकि मुझे ये एक्सप्लेन करना था कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट टाइम जब भी बताया जाता है इतना एनर्जी गेन हो रहा है, मुझे ये भी बताना पड़ा इतना एनर्जी लूज भी हो सकता है, जो यहाँ पे लूज हुआ है. Sir. यस सर मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो
जो हायर होगा जैसे वहां से 1 यूनिट है उसी से ही हो गया ना हर बार हायर से। Yes, yes, exactly. यस सर, थैंक यू सर। चलो इसी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बार का कंप्लीट हुआ। जितना भी डिटेल में कॉन्सेप्ट था, मतलब ये एडवांस वगैरह में यूज आते हैं सारे कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं बोलूं कि मेंस में नहीं है, बट हाँ एडवांस में जनरली क्वेश्चन बनते हैं। तो फोटो इफेक्ट मैंने काफी डिटेल में सब कुछ कंप्लीट किया है। कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम होमवर्क डिस्कशन पे चलेंगे। सर एक्सक्यूज मी। चलो मैं खुद एक क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पर। Lambda naught is given, Pauling wavelength is given, and electron is subjected to accelerating potential difference of 2 volt. Acceleration potential difference of 2 volt. तुम्हें मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी इलेक्ट्रॉन।
आर्य आंसर, आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट। तनीषा ने जूल्स में दिया है तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा। देखो, if we are not applying accelerating potential difference, so the K max will be 12400 upon wavelength lambda naught। इससे K max को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा है 1.0। K मिनिमम कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, मे बी पॉसिबल ड्यूरिंग कोलिजन इट विल लूज ऑल द एनर्जी, बाहर आते आते अपना जीरो एनर्जी पे आता है। Kinetic energy cannot be negative, it has minimum zero value। तो नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, जीरो होगा। बाहर आते आते जीरो हो गया, कोलिजन के कारण सारा लूज कर दिया और मैक्सिमम इतना। तो ये मिनिमम या मैक्सिमम कब तक? जब तक हमने ये अप्लाई नहीं किया। अभी अप्लाई किया है, यहाँ पे भी +2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे भी +2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 3.03 एंड 2 सारे इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, 2 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं। सो द एनर्जी गेन विल बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट ओके नाउ? डिपेंड्स, ऑप्शन किस यूनिट में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। बट इफ नथिंग इज गिवन तो पहला हिंट तो ये चाहता है कि वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब वही चल रहा है, तो उसमें डील कर लेते हैं बेटर। ठीक अनुष्का? Yes, sir. चलो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज 2 से दिया था होमवर्क। सर हाँ सर उस दिन आपने जो एक्सरसाइज 1 का 7 बताया, तो प्लीज फिर से बताओ ना सर, एक्सप्लेन करके। क्लास में हो चुका है कि एक बार का? सर वो मतलब आपने डायरेक्टली सॉल्व किया था सर, वो एक्सरसाइज 1 का, मतलब फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसका। कौन सा क्वेश्चन? एक्सरसाइज 1 का B7 तो पार्ट एक 1। काम करना, तो मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा। ठीक है? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। चलो होमवर्क फ्रॉम एक्सरसाइज 2। मैं एक मिनट चैट बॉक्स में टाइप करता हूँ, फिर तुम अपने डाउट्स टाइप करना। एक्सरसाइज 2 डाउट्स, यू नीड टू मेंशन बोथ पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कहाँ से दिया था, तुम अपने एंड से पार्ट और क्वेश्चन नंबर दोनों टाइप करो। Exercise 2 doubt discussion from homework। कितने बच्चों ने किया है होमवर्क कंप्लीट जितना दिया गया था? रेज योर हैंड। आई एम वेटिंग। अर्चित, लोकेश, मलार, ईशा, होमवर्क नहीं किया तुम चारों ने? अर्चित, लोकेश, मलार। सर पार्ट 1 और पार्ट 2 हुए, फिर आधा रह गया। चलो तो ऐसा मत करो, टाइम पे करो, इनफ टाइम मिल रहा है तुम्हें। अभी तो हम बहुत स्टार्टिंग के फेज में हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कैसे करोगे? होमवर्क टाइम पे करते चलो ना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट होने वाले हैं पूरे इंडिया में 2023 में, they have actually seriously started preparation। चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता उन बच्चों को। हाँ
50% बच्चा, वो ओवरऑल 50% बच्चा वो प्रिपरेशन नहीं कर रहा है जिसका सिलेक्शन होने ही नहीं वाला, जिसका नहीं होने वाला वो बेसिकली वही प्रिपरेशन छोड़ रहा है इस ऑनलाइन। मतलब ये सारी चीजें देखकर जिसका सिलेक्शन होने वाला है मैं लिख के दे सकता हूँ, वो बच्चा तो मेहनत कर ही रहा है। और लास्ट ईयर का जो दोनों ही एग्जाम का, मैं आईआईटी और नीट का, नीट में रिकॉर्ड बना था, एग्जाम 5 मंथ्स एक्सटेंड हुआ था, 700 मार्क्स का सिर्फ एक स्टूडेंट गया था पूरे नीट के हिस्ट्री में, एक ही बार। लास्ट ईयर 722 बच्चों के मार्क्स हैं, 700 प्लस कम से कम 20 बच्चों के मार्क्स हैं। तो बच्चे जिनका सिलेक्शन होना है ना, उनको तो उनकी प्रिपरेशन तो रहती रहती है। तो हम कहीं भी किसी से बिल्कुल भी एक मिनट भी पीछे न रहें, बिल्कुल दिमाग में न रखें कोविड है, ये है, वो है, हमसे नहीं होती पढ़ाई, या हम होमवर्क नहीं भी करेंगे तो कौन चेक कर रहा है। मतलब तुम्हारा ही करियर है तुम्हारे हाथ। अब तुम उतने छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं तुमसे बोलूं चलो होमवर्क सबमिट करो, इस पे व्हाट्सएप पे मुझे भेजो, ये करो। मतलब मैं तुम्हारा और मेरा दोनों का उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय अच्छे क्वेश्चंस डिस्कशन में टाइम हम यूज करें। 7th 8th के बच्चे जो रेजोनेंस में ना, पता है उन्हें अभी ऑनलाइन में सब कुछ किया गया है कि उन्हें वो होमवर्क सबमिशन और ये सब कुछ, बच्चे हैं वो नहीं समझते हैं। तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें अपने करियर के बारे में अच्छे से पता है क्या सही है क्या गलत। तो थोड़ा सा सिंसियर रहो। मतलब ऐसा नहीं मैं एक दो बच्चों को पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ, ये ओवरऑल हमेशा के लिए बोल रहा हूँ। और कहीं भी होमवर्क ज्यादा रहेगा, कभी कभी दे भी दिया जाता है बहुत ज्यादा होमवर्क, उतना टाइम नहीं होता है, हमें पता लगता है ज्यादा होमवर्क। दो चीजें, तुम चैलेंज लो, चलो आज रात में 3 बजे तक बैठ के होमवर्क करें, देखते हैं क्या होता है। और नहीं भी हो पा रहा है तो हमें भी पता लगता है कि उतना होमवर्क नहीं होगा, हम डिस्कस नहीं करते हैं वो फिर 100%, कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा और टाइम दे देते हैं फिर वापस। तो ऐसा है, टाइमली चीजें करते चलो। मैं तो, मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी भी होमवर्क इतना नहीं देता हूँ कि तुम नेक्स्ट लेक्चर तक नहीं कर पाओ। जब तक टाइम लिमिट दिए इतना होमवर्क डेफिनेटली तुम कर पाओ। ओके, कुछ डाउट्स आए हैं? पार्ट 2 का 4 फ्रॉम तनीषा। द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट to emit photoelectrons of zero velocity from the surface। जीरो वेलोसिटी का फोटोन मतलब बेसिकली जितना एनर्जी सप्लाई किया गया उतना ही एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब वर्क फंक्शन इनडायरेक्टली दे रखा है फोटो इलेक्ट्रॉन मीटर। अच्छा, हमें एक्स पूछा है। तनीषा चेक करो, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दे रखा है और हमें पूछा है कि मिनिमम उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जिसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, कितना वेवलेंथ रिक्वायर्ड। सो बेसिकली वर्क फंक्शन हम वही एनर्जी हो गया, वर्क फंक्शन इक्वल टू 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में सोल्व किया, उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तनीषा समझ में आया? Yes, sir. सर यस। सर मुझे इसमें एक डाउट था कि जो काइनेटिक एनर्जी सर वो जो जीरो होगी तो वो इलेक्ट्रॉन किसी भी अदर इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट नहीं होगा ना सर? के मैक्स जीरो, बस ये फॉर्मूला सिंपल सा लॉजिक है, इन दोनों को इक्वेट किया मैंने, कुछ भी नहीं। ठीक है, यस सर। सर फिर बम्बार्ड होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, अभी तो हमें दे रखा है के मैक्स जीरो, खत्म। यस सर, थैंक यू सर। पार्ट 1 का 5, पार्ट 1 5,
पार्ट 1.5 hc by lambda equal to work function plus k max. पहला k max पहला lambda, दूसरा k max दूसरा lambda which is lambda by 3. फाई के लिए सॉल्व कर लेना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आगे हो जाएगा। इसके बाद है अभिषेक का पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 2। जिस ऑर्डर में चैट बॉक्स में उस ऑर्डर में मैं करते जा रहा हूँ ना बस। क्वेश्चन 2 पार्ट 4। A laser producing monochromatic light is used to eject electron from the sheet of gold having threshold frequency this. Which of the following incident radiation will be suitable for the ejection of electron? सबसे पहले तो ये जो मोल दे रखा है ना 1.5 मोल 0.5 मोल, ये तो मैटर ही नहीं करता है। हमारे पास कितने फोटॉन्स हैं वो मैटर ही नहीं करता। मैटर तो सिर्फ ये करेगा एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या फॉलिंग फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। So photons having frequency this, हमें कितना दे रखा है, थ्रेशोल्ड दे रखा है 6.15, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3.05, तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, आंसर इज 2। फॉलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कितने फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं उस पे मैटर ही नहीं करेगा। इजेक्शन 1 इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब 1 फोटोन ओनली, तो एक फोटोन का कितना एनर्जी वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। जो स्टार्टिंग में देखा है ना 1, 1.5, 0.5, दे आर मीनिंगलेस फॉर अस। क्लियर अभिषेक? यस सर। इसके बाद था आर्य का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट A and C ऑप्शन पूछा है, alpha particle can come within a distance of the order 10 to the power minus 14 meter from the nucleus and scattering follows Coulomb's law. Both are correct. Both are correct. क्या दे रखा है इसका आंसर? आर्य सर वो मुझे ऑप्शंस नहीं समझे सर, एक कौन सी उसका एक आंसर बताओ, ये सही है नहीं? ए सी दोनों करेक्ट दिख रहा है मुझे तो। यस सर, ए बी सी करेक्ट है सर। अल्फा पार्टिकल कैन कम विद इन अ डिस्टेंस। देखो बेसिकली रदरफोर्ड्स मॉडल से हमें ये पता चला था साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज इन दिस ऑर्डर। याद है हमने किया था r इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3 और इसको लिखा था 1.3 फर्मी। फर्मी के ऑर्डर मतलब इस ऑर्डर में। सो न्यूक्लियस का ये साइज कैसे पता चला? जो अल्फा पार्टिकल है कितना क्लोज जा पा रहे हैं, उसके कितने भी हाई वेलोसिटी से सेंड कर दें, न्यूक्लियस से कोलाइड तो होगा नहीं, न्यूक्लियस के अंदर तो जाएगा नहीं, तो वो -15 ये था, उससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस तो जा रहे थे -14। इज दैट ओके? यस। तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन स्कैटरिंग फॉलोड कूलम्स लॉ। क्या यहाँ पर जो न्यूक्लियस था अल्फा पार्टिकल से रिपेल हो रहे थे इस मैनर में कुछ? यदि वो रिपेल हो रहे थे, रिपल्शन के लिए कौन सा लॉ हमने यूज किया है? कूलम्स लॉ हमने देखा है क्या, k q1q2/r²। यस कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, वही तो यूज करके हमने सब इसका एनर्जी और वो डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट अप्रोच निकाला है, राइट? यस सर। तो ये था पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद था पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये तो क्लास में किया है, मुझे क्यों ऐसा याद है? किया है नहीं हुआ है? नो सर। देखो हमें 1 मोल आइस को मेल्ट करना है। 1 मोल आइस, 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 330 जूल पर ग्राम इनटू 18। तो इतना टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है इक्वल टू NH न्यू।
इन नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है, एज पता है, न्यू दे रखा है, खत्म क्वेश्चन। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी 18 ग्राम, दैट इज 1 मोल ऑफ आइस इनटू 330 जूल पर ग्राम। देन क्वेश्चन नंबर सर सर वो 18 ग्राम 1 मोल ऑफ आइस है। हाँ क्या क्वेश्चन है यस सर, थैंक यू। कि 1 मोल आइस में 18 ग्राम क्यों, ये क्वेश्चन है क्या? बोलो जल्दी बोलो, मुझे आगे बढ़ना है, टाइम नहीं यस है। सर, यस सर, यस तो सर। बताओ क्या पता लग गया है? नो सर, बताओ ना। 1 मोल आइस का वेट नहीं पता है तुम्हें तो 1 मोल H2O का वेट नहीं पता, मोलार वेट क्या होता है? यस सर, 18। यस सर, थैंक यू सर। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 ऐसी हो गया। अब है वापस से पार्ट 3 का, डबल से लिख रहा। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस हो गया है हमारा। उसके बाद है समीक्षा का पार्ट 2 का थर्ड क्वेश्चन, जो भी ऑलरेडी डिस्कस हुआ। समीक्षा क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. देन अनुष्का एक्सरसाइज 1 पे आ गई। अनुष्का एक्सरसाइज 1 का भी होमवर्क दिया गया था क्या? एक्सरसाइज 2 इज देयर एनी होमवर्क पेंडिंग फॉर डिस्कशन? कुछ किसी का डाउट जो डिस्कशन के लिए पेंडिंग है? एक्सरसाइज 2 सर हाँ सर हमने यह एनर्जी पे वो 330 into 18 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन मोल से मल्टीप्लाई क्यों किया सर वहाँ? मेरे को नहीं समझ में आया, तुम क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से, तुम्हें समझ में आएगा। 1 मोल आइस को मेल्ट करना है, 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए इतना एनर्जी। 1 मोल में कितने ग्राम? 18 ग्राम। सो 1 मोल को मेल्ट करने के लिए इतना एनर्जी। ये आईआईटीसी में हुआ है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री 1 मोल, ये सब कुछ ना। यस सर, थैंक यू सर। चलो हम चलते हैं एक्सरसाइज 1 पर, पार्ट 2 B6। देखो समीक्षा, यहाँ अनुष्का, यहाँ पर हमें वर्क फंक्शन W दे रखा है, क्वेश्चन में दे ही रखा है। सो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट ओनली व्हेन एनर्जी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन विल बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो ये कंडीशन होना जरूरी है वर्क फंक्शन से, ये कंडीशन होनी चाहिए फर्स्ट। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी विल बी hν minus W. So it may come out with a kinetic energy less than this. Answer 4 is more appropriate, most appropriate. और may come out क्यों लिखा है? क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्लियर? दिस इज द Ke max, इससे कम भी हो सकता है जो आज हमने देखा। अनुष्का क्लियर है? Yes, sir. Any other doubt from homework, from any exercise 1, 2, 3? नहीं है किसी का भी कोई डाउट? चलो ठीक है, आज नया हेडिंग कुछ नहीं हुआ है तो मैं नए हेडिंग पे बेस्ड कोई क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाऊंगा, बट यस बेस्ड ऑन प्रीवियस हेडिंग मैं कुछ क्वेश्चंस ग्रुप पे सेंड करता हूं। Okay, I am ending the session now.